Okay, we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, developing oral and online presentations. In this chapter we will see that how you can develop your presentations. Either it can be a business presentations or online presentations. Business presentations are very important in business world. You have to or in your practical world sometime you are often asked to give presentations. आपसे अक्सर ये कहा जाता है कि आपने presentations देनी है. Oral presentations either delivered in a person or online, and these oral presentations offer important opportunities to put all your communication skills on display. बेसिकली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं इनका पर्पज़ ये होता है, और ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, दे गिव यू एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये प्रेजेंटेशंस आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप अपनी तमाम तर कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट कर सकें एंड डिस्प्ले कर सकें. सो दीज प्रेजेंटेशंस इधर दे आर द ऑनलाइन और इधर दे आर द person to person presentations. They give you an opportunity to put all your communication skills on display, including your research, your planning, your writing, visual designs, and interpersonal and non-verbal communication. So presentations also let you demonstrate your ability to think on your feet, grasp complex business issues, and handle challenging situations. इसके अलावा जो प्रेजेंटेशंस होती हैं ये आपको एक ना सिर्फ ये आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्प्ले कर सकें, बल्कि कि प्रेजेंटेशन जो हैं थ्रू दीज प्रेजेंटेशंस यू कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू थिंक ऑन योर फीट, to ability and you can also show your ability to grasp complicated and complex business issues, as well as you can show that how efficient you are in handling challenging or to handle challenging situations. So as far as planning of oral presentations is concerned, planning oral presentation is much like planning other business messages. बिल्कुल इसी तरह जैसे हम दूसरे बिजनेस मैसेजेस को प्लान करते हैं, सिमिलरली ओरल प्रेजेंटेशंस को भी इसी तरह से जो है वो प्लान किया जाता है. सबसे पहले उसमें जिस तरह हम दूसरे बिजनेस मैसेजेस जो होते हैं उसके लिए हम वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स, वी हैव ऑलरेडी रेड ऑल दिस थिंग्स several times कि before writing any business message, first you need to analyze the situation, then you gather the information, then you choose the select medium कि either you will deliver this message through direct approach or indirect approach, and then you organize your information and then you deliver your message. Similarly बिल्कुल इसी तरह जब आप एक प्रेजेंटेशन प्लान करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन को, तो उसमें भी हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं बिल्कुल दूसरे बिजनेस मैसेजेस की तरह. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालाइज द सिचुएशन, देन यू गैदर द इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड थिंग इज दैट यू सेलेक्ट द राइट मीडियम एंड then organize your information. So these are all the same steps which you follow in other business messages. You also follow these steps in planning oral presentations. Gathering information for oral presentation essentially the same as it is for the written communication. बिल्कुल इसी तरह आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी ओरल प्रेजेंटेशन अपने रिटन बिजनेस मैसेज के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. सिमिलरली इसी पैटर्न पे आप ओरल प्रेजेंटेशन के लिए भी यू हैव टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें प्लानिंग के, तो बी अवेयर ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो प्रोफेशनल क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है इट रिक्वायर्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स एनफ टाइम. और फॉर अ क्वालिटी बिजनेस प्रेजेंटेशन यू नीड टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम, और you should or you are expected to spend a quality time, and you can take a considerable amount of time if you really want to prepare a quality business presentation. अगर हम analysis the situation की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता है we already discuss हम previously सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि analyze the situation में आप क्या करते हैं. First of all you define your purpose and then you develop a profile of your audience. Okay, what sort of a audience you are going to face, and it also include their emotional status and their language preference. So उसके बाद आप क्या करते हैं, then you ये तो आप करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन का एनालाइज करते हैं कि what sort of the इसमें आपका पर्पस क्या है, what is the purpose of your message. So here you will define the purpose of your presentations and then you will profile your audience. The purpose of most of your presentation will be to
इन्फॉर्म, टू परसुएट। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने डिफाइन करना होता है कि आपका पर्पस क्या है। इधर यू आर गोइंग टू गिव द प्रेजेंटेशन टू इन्फॉर्म, to persuade the people, or although you may occasionally need to make a collaborative presentation. So first of all you have to in analyzing the situation you have to define your purpose, and then you should know your audience state of mind, your audience requirements, your audience needs. And when you will know your audience need and their state of mind, it will definitely help you adjust both your message and your delivery. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट सेलेक्टिंग द राइट मीडियम। उसके बाद जो है जब आप अपने ऑडियंस को जो है आप जब उसके बाद जब आप सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट देन यू नीड टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। आपने तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी होती है। डिटर्मिन दैट what is your audience requirement, what is your audience need, and then you should obtain the information necessary to satisfy your audience needs. And the third thing is that selecting the right medium. ये सारी वही चीज़ें हैं जब हम ऑलरेडी जो है वो पढ़कर आ चुके हैं। अब इसमें देखें सेलेक्टिंग द राइट मीडियम में आपने वही सेम उसी तरह आपने चूज़ करना है कि इधर यू आर गोइंग टू डिलीवर योर मैसेज, व्हाट इज़ द राइट मीडियम टू डिलीवर योर मैसेज। सो द टास्क ऑफ सेलेक्टिंग द राइट मीडियम might seem obvious, so you have to be very careful choosing your right medium. So it is if it is an oral medium, however you have an array of choice these days. अब चूँकि ये मॉडर्न एरा है और टेक्नोलॉजी का एरा है, तो उसमें आपके पास चॉइस है कि आप वेब कास्ट करना चाहते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए ऑरल प्रेजेंटेशन ऑनलाइन देना चाहते हैं, या रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वट एवर इट इज़। तो आपके पास यू हैव अ चॉइस। सो यू विल चूज़ द राइट मीडियम कि आपका जो मैसेज है उसके लिए वट इज़ द right medium. And then after the last thing is that you will organize your information, you will organize your presentation. Organizing a presentation involves the same task as organizing a written messages. ये भी सेम वैसे ही जैसे आप written messages को organize करते हैं उसके information को, similarly यहाँ पर आप जो है वो जो presentation की जो प्रेजेंटेशन है और उसको भी आप उसी तरह सिमिलरली जिस तरह आप रिटन मैसेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिमिलरली यू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले अगेन यू विल डिफाइन योर मेन आइडिया, देन यू विल लिमिट द स्कोप, देन यू सेलेक्ट डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच एंड आउटलाइन योर कंटेंट, एंड देन कीप इन माइंड दैट व्हेन पीपल रीड रिटन रिपोर्ट्स दे कैन skip back and front content. So if they are confused or do not need certain information, however in oral presentations audience are more or less trapped in your time frame and sequence. जबकि आप जब रिटन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो या रिटन प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि ऑडियंस के पास ये चॉइस होती है कि वो उसमें से जो है वो सिलेक्टेड पोर्शन जो है उसको गो थ्रू कर ले, वो स्किप कर दें, उसमें जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उनको रीड कर लें। लेकिन जब आप औरल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसमें आपके जो ऑडियंस हैं दे आर मोर और लेस ट्रैप्ड इन योर टाइम फ्रेम एंड सीक्वेंस, वो आपके टाइम फ्रेम और सीक्वेंस में ट्रैप हो जाते हैं। फॉर सम प्रेजेंटेशन यू शुड प्लान टू बी फ्लेक्सिबल and respond to audience feedback, such as skipping overall sections the audience does not need to hear and going into more detail in your section. उसके बाद ये डिफाइनिंग योर मेन आइडिया है। ये भी वही चीज़ है कि इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर राइटिंग, व्हाट इज़ योर मेन आइडिया, आपका मेन आइडिया क्या है, उसमें आपने जो है डिफाइन करना है अपने मेन आइडिया को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट लिमिटिंग ऑर्गेनाइजिंग योर प्रेजेंटेशन में आगे 3-4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, लिमिटिंग योर स्कोप एंड चूजिंग द राइट अप्रोच। और उसके बाद आप जो है वो प्रिपेयर करते हैं अपनी आउटलाइन को। तो अभी मैंने आपको बता दिया डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेवरल टाइम्स के डिफाइनिंग द मेन आइडिया जो है वो क्या चीज़ है। उसके बाद लिमिटिंग द स्कोप क्या है। लिमिटिंग योर स्कोप बेसिकली इंश्योर्स यू दैट योर प्रेजेंटेशन, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। फॉर मोस्ट प्रेजेंटेशन यू मस्ट वर्क विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। पहली चीज़ इसमें ये होती है कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है आपको जो गिवन टाइम अलॉट किया जाता है आपने उसमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। बाज़ औक़ात आपको 5 मिनट्स दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात 30 मिनट्स होते हैं, बाज़ औक़ात आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर मैसेज, ऑल योर पॉइंट्स इन दिस लिमिटेड टाइम। सेकेंडली इसमें जो है लिमिट द स्कोप का मतलब ये होता है द लॉन्गर यू स्पीक द मोर डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू होल्ड द ऑडियंस अटेंशन। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं, जितना आप लेंथी बोलते हैं, उतना जो है ये डिफ़िकल्ट होता है आप अपने ऑडियंस
की जो अटेंशन है उसको रिटेन करना, अपने ऑडियंस के जो अटेंशन लेवल है उसको मेंटेन करना जो है इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, एंड द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर योर लिसनर टू रिटेन योर की पॉइंट्स। और आपके ऑडियंस के लिए भी इतना ही आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि अपने ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको किस तरह से रिटेन करते हैं। सिमिलरली इट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर योर लिसनर टू रिटेन योर पॉइंट ऑफ व्यू और योर की पॉइंट। ठीक है जी, तो ये दैट इज़ द